किसी को कोई प्रॉब्लम है? बेटा कुछ तो रिप्लाई दिया करो। Anyone having any problem in the molecular solids, ionic solids, metallic solids, or the network solids? Anyone? रिप्लाई करो बेटा। No, ma'am. Okay, fine. So let's start with the new topic today. That is your crystal lattice and unit cells. अब देखो, when we are talking about the crystal lattice and the unit cells, तो just इसको ऐसे कोरिलेट करो कि जो हमारा घर हो गया, a complete house, it is a crystal lattice, and when we are talking about the each single room, घर के अंदर हमारे जितने भी कमरे हो गए वो यूनिट सेल हो गए। ओके, again I'm repeating, a complete house is the crystal lattice and each room is representing a unit cell. Now basically when we talk about the crystal lattice, तो crystal lattice क्या हो गया? It is a three-dimensional structure like this. Crystal lattice is your three-dimensional structure, or you can say the arrangement of the particles, या आप ये कह सकते हो the arrangement of the constituent particles in the 3D manner is called as a crystal lattice. अब constituent particles के अंदर there can be the atoms, there can be the ions, there can be the molecules. Anything can be there. If we talk मैम, about the yes, मैम रजत को इनवाइट कर दो। okay beta. Rajat, I invited at that time, he was coming unavailable. Okay. Yes. Now, when we talk about the unit cell means कि छोटी छोटी repeating units of the crystal lattice, they are called as a unit cells. और हर एक line of joining, जो भी आपके हर एक line को एक एक point को join कर रही है, वो कहलाती है edge. These are the two diagrams. ये this is your crystal lattice and इसका ये छोटा सा blue portion is the unit cell. Okay, the easiest way to remember it is what, that you just remember कि जो हमारा पूरा घर हो गया वो crystal lattice हो गया, and when we are talking about the each single room in our house, they are representing a unit cell. इतना point is clear, the difference between the crystal lattice and unit cell? Clear or not beta? Yes, ma'am. Okay, now this is the structure of the unit cell. Unit cell की केस में, now what are going to be these thing, कि ये जो हर एक point है, this blue भी है, purple I take, this point, this point, this point, all these corners. Okay, these all are what, तो आप corners बोल सकते हो और edges you can call them as. Then we are having the x, y, z. ये हो गई length of all the cell edges. यहां से यहां तक का, from here up to here and from here up to here. Then when we talk about the angles,
तो एक एंगल ये हो गया, another angle is this and the another angle is this, that is your alpha, beta and the gamma. Okay, again I am repeating, ये जो ends हो गए, ये ends हो गए corners, x y z जो है ये हो गई edges and these are your angles. Got this point? Now what happens when we started studying a crystal lattice, what happened that there was one scientist, you can say he was a French mathematician. He described the 14 possible three-dimensional lattices, and at the time when he described that particular structures, that 14 represented structure, they named as the, after him name, Bravais lattices. Now, according to him, he said that whatever the crystal be, चाहे कोई भी crystal हो, हर एक crystal के अंदर there will be the each point in a lattice which is going to called as a lattice point, जिसको we also called as the lattice site. Ansh is here or not? Yes, ma'am. Okay. Then another point he said कि हर एक पॉइंट क्रिस्टल लैटिस में, जितने भी पॉइंट्स आपके क्रिस्टल लैटिस में हैं, दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी हो सकता है. each these are points are given as it is in your NCERT book, so you can mark them over there. Crystal lattice represents one constituent particle, which can be your atom, molecule or the ion. Third point he said कि जितने भी lattice points हो गए, they are joined by the straight lines, और वो straight line से इसलिए joined है ताकि वो एक perfect geometry provide कर सके to a lattice. All the lattice points are joined by straight lines. Okay, this is about the lattice when you are talking about the lattice. Now when we are talking about the unit cell, अगर हम unit cell की बात करते हैं, तो in the case of the unit cell we say कि उसकी जो dimensions हो गई, they are along the three edges only. This their dimensions are along the three edges only, जिसको आपने यहाँ पे नाम दिया XYZ, and these edges, they can be perpendicular or they cannot be perpendicular to each other. The both possibilities are there. दूसरी चीज ही सेट कि जितनी भी एजेस हो गई, उनके बीच की जो एंगल्स हैं उनको अलग नेमिंग दिया गया, दैट इज योर अल्फा, बीटा एंड गामा. जैसे अगर आप देखो तो आपका ये वाली लाइन, दैट इज योर जेड और x, इन दोनों के बीच में जो एंगल आया वो अल्फा आ गया. इन दिस मैनर, अकॉर्डिंग टू ऑल दीज पैरामीटर्स, ये सारे पैरामीटर्स कौन से हो गए? दे ऑल पैरामीटर्स आर द measurable parameters. According to all these parameters, your unit cell is divided into the two types. Two types आपके कौन से हो गए?
that you can say that it is divided into the main two categories, that is your primitive unit cell और एक centered unit cell. This your primitive cell, आपका जो यूनिट सेल है, इट इज डिवाइडेड इनटू द प्रिमिटिव सेल एंड द यूनिट सेल. ओके, अब जो प्रिमिटिव सेल हो गया, प्रिमिटिव सेल के केस के अंदर whatever the particles refers to the your constituent particles, whatever the constituent particles are there, they are represented at the corners only. If we talk about the centered unit cell, तो centered unit cell में जितने भी particles हैं वो corner पे present होंगे, corner के अलावा दूसरी positions पे भी present होंगे. That will be called as your centered unit cell. इतना point is clear? Yes, ma'am. जहां पे किसी को भी doubt आए, just keep on asking it. Okay, because मैम this, हाँ बच्चे मैम बोलो ये जय. सेंटर्ड यूनिट सेल मैम इसमें आप बोल रहे हो कि कॉर्नर्स पे भी रहते हैं सेंटर पे भी रहते हैं. जैसे look in this case, centered unit cell में मैंने ये बोला, यहीं पे आ जाओ आप, over here. Now over here I told you कि corners पे है, means एक corner दो तीन यहाँ पे भी. उसके अलावा according to its further classification it can be present either of the side. यहाँ पे हो सकता है, 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 any of the place. That is according to its further classification. Clear है ये point? तो मैम मैं ये प्रिमिटिव और सेंटर्ड में डिफरेंशिएट कब करेंगे? अगर दोनों कॉर्नर्स पे हुए तो फिर पता कैसे चले कौन सा प्रिमिटिव है कौन सा? देखो प्रिमिटिव के केस के अंदर क्या होगा, प्रिमिटिव के केस में ये वाली कंडीशन होगी. ओके, ये प्रिमिटिव कंडीशन हो गई. अगर मैंने कहा सेंटर्ड यूनिट सेल, तो सेंटर्ड यूनिट सेल में जो है फर्दर हमारे पास आ जाता है बॉडी सेंटर्ड. बॉडी सेंटर का मतलब क्या हो गया कि जो कंप्लीट आपका क्यूब है, मतलब ये समझो कि अभी तुम जस्ट इमेजिन करो डायग्राम के साथ साथ तुम लोग जिस रूम में बैठे हुए हो, उसके रूम्स के जितने भी हमारा जो ऊपर नीचे फ्लोर हो गया, फ्लोर में 4 कोने हो गए, वो कॉर्नर्स हो गए, और जो ऊपर लेंटर हो गया, लेंटर के 4 कॉर्नर्स हो गए. तो ये रूम तुम्हारा क्या हो गया, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया. अब से सपोज पूरा कमरा जो तुमने लिया उसमें जहां पे तुम बैठे हुए हो, जो सेंटर पोजीशन है तुम्हारे पूरे रूम की, जो सेंटर पोजीशन है, तो उस सेंटर के अंदर अगर एक यूनिट, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आ जाता है, तो उसको यू आर गोइंग टू कॉल्ड एज अ बॉडी सेंटर्ड. ये वाली कंडीशन.
देखो अब जो ब्लू वाले हो गए, ब्लू वाले कॉर्नर्स हो गए, जो ये रेड वाला बीचों बीच आ गया, दैट इज गोइंग टू कॉल्ड एज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यूनिट सेल। समझ में आया ये? गॉट दिस पॉइंट? यस मैम। Yes. है ना? Yes, ma'am. साथ साथ प्रैक्टिकल के लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छा सजेशन दे रही हूँ। जिस रूम में तुम लोग बैठे हो उसको इमेजिन करते जाओ कि 4 कॉर्नर तो हो गए तुम्हारे फ्लोर के और 4 कॉर्नर्स हो गए तुम्हारे लेंटर के। अब पूरे रूम में हम जनरली बीचों बीच फैन लगाते हैं, इजंट इट? तो जो वो फैन वाला सेंटर हो गया, मींस बीच में हवा में, नॉट अ फैन, जो बीच वाला पोर्शन हो गया, जैसे यहाँ पे ये रेड बॉल तुम्हें नजर आ रही है, दैट विल बी योर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। गॉट इट? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसके अंदर आ जाती है, सेंटर्ड यूनिट सेल में एक बॉडी सेंटर्ड हो गया, दूसरा हो गया फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर का मतलब कंटेन्स वन पार्टिकल एट सेंटर ऑफ ईच ऑफ द फेस। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन क्या हो जाता है कि तुम्हारे रूम्स की, वापिस अपने रूम को देखो, रूम्स में 4 दीवारें हैं, यस, 4 वॉल्स आर देयर, हर एक वॉल के ऊपर बीचों बीच एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आ गया, दैट विल बी योर फेस सेंटर। जैसे लुक दिस डायग्राम, यहाँ पे ये इस वॉल पे आ गया, ये इस वॉल पे आ गया, ये इस पे आ गया, ये इस पे आ गया, और 2 ये आ गए। अब ये 2 कैसे आ गए बेटा कि एक लेंटर वाला हो गया और एक फ्लोर वाला आ गया। तो इट मीन्स that everywhere you are having the one constituent particles, that will be called as your face centered। क्लियर हुआ ये पॉइंट? मैम ये दो कैसे आए, एक बार वापस समझा दो। 2 ऐसे आए कि तुम्हारे रूम देखो, तुम्हारे रूम में 4 वॉल्स हैं, चारों वॉल के बीचों बीच एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आ गया। 4 वॉल्स के बाद क्या बचता है तुम्हारे पास? एक छत बचती है, इन 2 में से एक पार्टिकल तुम्हारा छत का हो गया और एक बचता है तुम्हारा दैट फ्लोर, एक पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फ्लोर का हो गया। गॉट दिस पॉइंट? यस मैम। सबको आ गया समझ में? यस मैम। अब थर्ड सेंटर्ड यूनिट सेल का आ जाता है पार्ट, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड का मतलब कंटेन्स वन पार्टिकल एट सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस। अब देखो 2 अपोजिट फेसेस का मतलब क्या हो गया, दैट यू कैन कंसिडर एनी ऑफ द, एफसीसी ही है ये भी, ओके। टू अपोजिट फेसेस का मतलब क्या हो गया बेटा यहाँ पे कि मान लो आप जहां पे भी अपने रूम में बैठे हो, एक आपकी जो फ्रंट में वॉल है और एक आपके बैक पे जो वॉल पड़ रही है, तो वो दोनों वॉल्स क्या हो गई? अपोजिट वॉल्स हो गई। से सपोज मेरी एक वॉल ये हो गई एंड अनदर वन विल बी दिस, तो ये दोनों क्या हो गए? अपोजिट टू ईच अदर हो गए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन आप लेके चलो कि आपके लेफ्ट में जो वॉल है और जो वॉल राइट में है, एक कंडीशन ये हो सकती है, और यू कैन हैव द राइट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड, वो भी तो अपोजिट हो गए। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि आपके या तो जो सीलिंग है, सीलिंग के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो और एक फ्लोर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो, दैट विल बी योर third condition। Any of the 3 condition is applicable in the case of the end centered unit cell। Is that clear to all of you? यस मैम।
कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर? नो मैम। यस, इजी है ना? यस। अब व्हाट हैपेंड कि अकॉर्डिंग टू ऑल दिस basically we are having the 7 primitive structures. अब देखो ये जो 7 primitive structures हैं, ये 7 primitive structures में if you are talking about the simple cubic structure, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के केस में क्या हो जाता है बेटा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा दैट यू आर हैविंग द प्रेजेंस एट द कॉर्नर्स ओनली, इजंट इट? अब सिंपल क्यूबिक में क्या हो जाता है कि आपकी जितनी भी लेंथ्स हैं दैट इज ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सारी लेंथ्स जो है वो इक्वल होंगी। अनदर थिंग, जितने भी एंगल्स आ रहे हैं अल्फा बीटा गामा, दे आर गोइंग टू बी द 90 डिग्री। व्हेन वी टॉक अबाउट द टेट्रागोनल शेप, आप सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बना सकते हो। सेकेंड इज द टेट्रागोनल शेप। When you are talking about the tetragonal shape, your A is equal to the B, but they are not equal to the C. ये आपका C will be there. So A is equal to the B, but they are not equal to the C. That particular will be tetragonal shape, and angles will be 90 degree again. Orthorhombic shape, ऑर्थोरोम्बिक शेप में कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, दैट इज ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, बट द एंगल्स अगेन विल बी द 90 डिग्री ओनली। अनदर रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल के केस में ऑल द साइड्स विल बी इक्वल, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एंगल, योर एंगल्स इन द केस ऑफ दैट आपका अल्फा और बीटा सेम एंगल होंगे, but gamma will not be the 90 degree. In the case of the monoclinic, your A and B, मैम अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल होंगे ना, तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं होने चाहिए? हाँ, तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे, तीनों इक्वल होंगे बट 90 के बराबर नहीं होंगे। ओके? यस मैम। मोनोक्लिनिक के केस में क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा सॉरी ए एंड बी साइड्स विल बी इक्वल, सी विल नॉट बी इक्वल। अल्फा और गामा दे विल बी द 90 डिग्री, बट बीटा 90 डिग्री नहीं होगा, इट विल हैव द अनदर वैल्यू। ट्राइक्लिनिक के केस में कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, कोई भी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होगा। योर हेक्सागोनल, हेक्सागोनल के केस में ए एंड बी साइड्स विल बी इक्वल बट सी विल नॉट बी इक्वल, अल्फा और बीटा 90 डिग्री होंगे, गामा विल बी 120 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे व्हाट हैपेंस, यहाँ पे वी हैव डन इन द क्लास 11 कि हमारे पास दो टाइप के, आप यू कैन से द सिस्टम कम्स कि एक्सियल एंगल, यस बोलो मैम। ये मोनोक्लिनिक में मैम, इसमें मैम तीनों ही अनइक्वल है मैम, लेकिन इसमें आपके में तो ए इक्वल्स टू बी दिखा रहा है मैम। किसमें बेटा? मैम बुक में तो तीनों ही अनइक्वल है मैम, साइड्स। मोनोक्लिनिक में? हाँ मैम। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ वो। नो मैम। नहीं बेटा, नहीं, तीनों अनइक्वल है ना? यस मैम। अच्छा, ओवर हियर देयर मे बी द मिस्टेक, ये लो, दे ऑल थ्री आर द अनइक्वल। नहीं नहीं मैम एक इक्वल है। एक मिनट मैम बेटा, हमारी बुक में तो एक अनइक्वल है, बाकी एक दो अनइक्वल आएगा बेटा बाय, मेरे ख्याल से यहाँ पे ए और बी इक्वल आएगा, ए और बी इक्वल आएगा बेटा। मैम बुक में अनइक्वल ही दे रखा है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, यस मैम। वेट अ मिनट बेटा, लेट मी चेक।
Monoclinic unit cell. हम तीनों ही डिफरेंट यस, होते हैं। तीनों तीनों ही डिफरेंट होंगे बेटा इस केस में, तीनों ही डिफरेंट होंगे। ओके, तीनों ही इन केस में डिफरेंट होंगे। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में ऑल द साइड्स आर यानी इक्वल। जो डिफरेंस दोनों के अंदर आएगा वो अल्फा, बीटा और गामा के अंदर बॉन्ड एंगल्स में आएगा। ओके, इज इट क्लियर? अब देखो, what I was telling you people कि यहाँ पे we get the one question over here that what are axial and edge length in a cubic crystal system. Anyone? क्या होगा ये? What are the axial and edge length in a cubic crystal? मैम इसके अंदर सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल होंगी। What is this system means? इसको लिख लो। It is the smallest portion of a crystal lattice. It is a smallest portion of a crystal lattice which when repeated in different direction then axial angles, that is alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree, and edge length will be A equal to B equal to C. सारे साइड सारे एंगल्स इक्वल होंगे, यू वर करेक्ट, बट व्हेन दे आर गोइंग टू बी in a repeated different directions then also. Okay, ये 1 marks का question भी expect over here. Written this much everyone? Yes ma'am. अब देखो, in the starting we studied the cubic unit cell. अभी जो हम लोगों ने 7 crystal system देखे थे, that is your over here, ये वाले। तो ये जो सिंपल क्यूबिक सिस्टम था, इन दिस पर्टिकुलर केस दिस वन इज गोइंग टू बी द मोस्ट सिमेट्रिक सिस्टम। ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिक सिस्टम है, टेबल में ही लिख लो। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिक सिस्टम। Triclinic is going to be the most unsymmetric system. Got it? Everyone got this point? Yes ma'am. Yes. अब यहाँ पे again the one thing which you people have to remember is what, which is important also. In your book, look, there is the unit cells of 14 types of Previs lattice. वहां पे दे रखा है unit cells of 14 types of Previs lattice. Yes ma'am.
यस, तो हमें शेप्स याद नहीं करनी है उनकी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, लाइक उधर ही टेबल के आगे लिख लेना आप लोग, अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्यूबिक टेट्राहेड्रल ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक के बाद मोनोक्लिनिक, राइट इन दिस फॉर्मेट ओनली, मतलब यही सीरीज फॉलो करना while writing. Hexagonal, rhombohedral and triclinic. ओके, अब इस केस में क्या बेटा, टेट्राहेड्रल नहीं है मैम, टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल, टेट्रा, अच्छा टेट्रागोनल। अब वन थिंग यू रिमेंबर दैट योर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब कि जिसमें कॉर्नर्स प्रेजेंट है, प्रिमिटिव इज गोइंग टू प्रेजेंट इन ऑल, जितने भी ये सिस्टम्स आपने पढ़े हैं इन सब के अंदर प्रिमिटिव सिस्टम विल बी प्रेजेंट इन ऑल. When we talk about the body centered unit cell, body centered का मतलब BCC type, तो it is going to present in the case of the cubic, your tetragonal and your orthorhombic. Then if you are going to talk about the FCC, FCC का मतलब क्या हो गया, face centered cubic system, so it is going to present in the cubic and orthorhombic. And then we are having the end centered system, ECC. In that particular is going to present in a orthorhombic and monoclinic. ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि प्रिमिटिव सबके अंदर होगा, बीसीसी क्यूबिक टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक में होगा, एफसीसी क्यूबिक ऑर्थोरोम्बिक में होगा, ईसीसी ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक के अंदर होगा. Written this much? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, accordingly to that, your table number 10 point, your table number 1.3, 1.3 का मतलब कि जो मैंने अभी आपको बताया वो आपके edge length, your axial angles और examples, they all are very very important. ये आपको याद होना चाहिए. हर एक के एटलीस्ट 2 to 3 एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे. एग्जाम्पल मतलब कि सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला व्हाट टाइप ऑफ अ सिस्टम इज प्रेजेंट इन द ग्लोबल सॉल्ट, तो ग्लोबल सॉल्ट में आपको पता होना चाहिए इट इज गोइंग टू हैव द मोनोक्लिनिक सिस्टम. ओके, लाइक व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज हैविंग द ब्लू विट्रॉल, सो इट इज हैविंग द ट्राइक्लिनिक सिस्टम. अब देखो तुम लोग खुद भी इमेजिन कर सकते हो, ट्राइक्लिनिक के केस में मैंने बोला इट इज द मोस्ट अनसिमेट्रिक सिस्टम. कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इफ यू रिमेंबर तो आप लोगों ने क्लास 11th में बनाए होंगे. यस, तो उसके अंदर जो उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आते हैं दे आर वेरी इरेगुलर, एक रेगुलरिटी नहीं होती है. तो बाय दैट यू कैन जस्ट इमेजिन कि अच्छा CuSO4 that 5H2O, it means blue vitriol, it is having a dry clinic structure. So your homework for the today is what? Learning the table 1.3. Okay. Is that clear to all of you?